गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कल का डाउट सेशन देखा? ओके, क्या क्या देखा? तो अगर ब्रीफ में बताओ तो ये पूरा जो हमारा सेशन है वो कनेक्टेड है। ठीक है, आगे के 6 सेशन, फिर डाउट सेशन और यहाँ से जो 3 सेशन होने वाले, तो कुल मिलाकर ये 10 के 10 सेशन हमारे फोकस कर रहे हैं ऑन अ टॉपिक which started like this. If you can remember, we started like this, that every business is all about activities. Those activities which are relating to business and which can be measured in terms of money, they are basically termed as transactions. And every transaction, irrespective of what business you are talking about, every transaction at the end of the day is talking only and only about two ultimate events. One which will result into outflow of resources, and one which will result into inflow of resources. जो आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज होता है उसे हम टेक्निकली कहते हैं पेमेंट्स, या फिर एक्सपेंस, या फिर लॉस। जो इनफ्लो ऑफ रिसोर्सेज है उसे हम टेक्निकली कहते हैं रिसीट्स और गेन्स। लॉस की हम अभी बात नहीं करेंगे और गेन की भी हम अभी बात नहीं करेंगे। होप दैट इज क्लियर। वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट पेमेंट and the another term for payment is expense and receipts. As far as payment or expenses are concerned, हमने आगे देखा that they are further classified into revenue expense, कैपिटल एक्सपेंस एंड बीच में डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस, जिसमें हमने डिटेल में समझा कि रेवेन्यू एक्सपेंसेस आर बेसिकली वन विच आर फ्रॉम योर डे टू डे रूटीन बिजनेस एक्टिविटी, विच आर रिकरिंग इन नेचर, जिसे आपको बार बार करना पड़ता है। क्यों बार बार करना पड़ता है? बिकॉज दे हैव शॉर्ट टर्म बेनिफिट, एंड शॉर्ट टर्म बोले तो लेस देन 1 फाइनेंशियल ईयर, एंड एट द एंड ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर द पोर्शन ऑफ एक्सपेंस विच इज एग्जॉस्टेड इज, इफ यू कैन अंडरस्टैंड, क्लोज्ड, और उसका हिसाब हो जाता है। और हिसाब करने के लिए कहां डालते हैं? पीएनएल में। And the portion of revenue expense which is yet to exhaust is carried forward from one financial year to another financial year through what balance sheet as what? Current asset. Hope that is clear. On the other hand, capital expense, if you can remember, used to basically mean those expenses which are business related, but they are not from day to day relate, rather routine activity. They are non-recurring in nature. And why they are non-recurring? Because once they are incurred, their benefit is of longer period of time. Long bole to more than 1 financial year. And that's why at the end of every financial year, the portion of expense which is exhausted is treated as revenue and is known as depreciation and is close to profit and loss account. And the portion of expense which is yet to exhaust is carried forward from one financial year to next financial year toward balance sheet as what? Non-current asset. On the other hand, deferred revenue expense, it is basically a revenue expense, but unlike other revenue expense, it is non-recurring in nature. Why non-recurring? Because unlike other revenue expense, it is assumed to have long-term benefit. And that's why at the end of every financial year, the portion of expense which is assumed to have exhausted is closed
as revenue expense to profit and loss account, and the portion of expense which is assumed to have future benefit is carried forward from one financial year to another financial year through what balance sheet as what fictitious asset. So this is what we have already seen. हमने difference भी देखा सर, deferred revenue और capital में difference क्या है? तो capital expense will always result into acquisition of right or property. On the other hand, deferred revenue expense will never result into acquisition of any right or property. Second, capital expense, the unexhausted portion always has realizable value. Deferred revenue expense, unexhausted portion do not have realizable value, and that's where they are termed as fictitious assets. Assets which do not have realizable value, they are unreal or imaginary assets. Hope you can understand. So यहाँ पर हमारा पेमेंट हुआ, लॉस की अभी हमने बात की नहीं है, उस पर हम बाद में आएंगे. रिसीट्स की बात करें तो ये ब्लू में ले लेता हूं क्योंकि हमारा लर्निंग पॉइंट है. तो रिसीट्स जस्ट लाइक पेमेंट, और आई से अनलाइक पेमेंट, there are no 3 types of receipts, but there are 2 types of receipts. One to my left, something called as revenue receipts, and to my right you got capital receipts. Now what are revenue receipts and what are capital receipts? So once again, if you can remember, the base of, I'll say, analyzing revenue, deferred revenue and capital was benefit. If you can remember, every expense comes with a benefit. कोई भी खर्चा, ये पेन खरीदा उसका बेनिफिट, ये बोर्ड खरीदा उसका बेनिफिट, ये ब्लेजर खरीदा उसका बेनिफिट, ये घड़ी खरीदा उसका बेनिफिट, ये फोन जिस पर रिकॉर्डिंग हो रहा है उसका बेनिफिट, ये फोन जिस पर रखा है ट्राइपॉड उसका बेनिफिट, ऊपर जो ट्यूबलाइट लगी हुई है उसका भी एक बेनिफिट होता है, कार जो है उसका बेनिफिट है, ये घर है उसका एक बेनिफिट है. कोई भी खर्चा ले लो उसका बेनिफिट होता है. अगर बेनिफिट 1 साल के अंदर खत्म होता है, रेवेन्यू 1 साल से ज्यादा चलता है, कैपिटल. बेसिकली रेवेन्यू है मगर मुझे ऐसा लगता है कि उसका बेनिफिट 1 साल से ज्यादा चलेगा, तो डेफर्ड रेवेन्यू. सो व्हाट इज सेपरेटिंग रेवेन्यू, कैपिटल एंड डेफर्ड रेवेन्यू बिटवीन ईच अदर इज नथिंग बट बेनिफिट, और यू कैन से पीरियड ऑफ बेनिफिट. यहां पर जब रिसीट पर आते हैं तो सबसे बड़ा जो डिफरेंस है is that when you recognize receipt between capital and revenue, it cannot be benefit. Now why it cannot be benefit? Because understand this, कि receipt is basically money or money's worth coming in. अब मान लो कि मेरे पास 1 करोड़ रुपया है, या आपके पास 1 करोड़ रुपया है, या किसी के भी पास 1 करोड़ रुपया है, तो वो 1 करोड़ का बेनिफिट कितना है, अगर वो बेस बनेगा रेवेन्यू और कैपिटल के लिए तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 1 करोड़ रुपए का कितना बेनिफिट है, इट इज अ वेरी सब्जेक्टिव टर्म. सब्जेक्टिव का मतलब है इट विल डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. लाइक एग्जाम्पल दे रहा हूं, सब्जेक्टिव वर्ड के लिए एग्जाम्पल दे रहा हूं कि इफ यू आस्क कि भैया should Kohli continue as a captain after losing a World Cup? तो ये बड़ा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बिकॉज सम पीपल विल से यस, सम पीपल विल से नो. ओपिनियन विल डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. शुड धोनी स्टिल कंटिन्यू और वेट फॉर वर्ल्ड कप T20 और शुड ही रिटायर? इट्स अ सब्जेक्टिव क्वेश्चन. It will differ from person to person. One who is a Dhoni fan, he will say yes, T20 वर्ल्ड कप नहीं, मेरे हिसाब से तो 2023 वर्ल्ड कप में भी धोनी होना चाहिए. But one who is a cricket fan, he might say no, he's done, so he should not be there. Let's give chance to a person who is in future. So it will differ from person to person, if you can understand. So this is subjective. तो उसी तरह से 1 करोड़ रुपए का बेनिफिट 1 साल के अंदर खत्म होगा या 1 साल से ज्यादा होगा, वो बड़ा सब्जेक्टिव मैटर है. लाइक द गाय हु हैज नथिंग विथ हिम, यानी उसके पास सब मिलाकर 1000, 5000, 10,000 रुपए, अगर आप उसको बोलोगे कि भाई तेरे पास 1 करोड़ होगा तो बेनिफिट कितना रहेगा, वो बोलेगा 1 करोड़, मैंने तो कभी इतना सोचा भी नहीं है. अगर
आ गया तो मेरी तो जिंदगी निकल जाएगी। तो उसके लिए 1 करोड़ का बेनिफिट पूरी जिंदगी है। होप दैट इज क्लियर। बट इफ यू आस्क, से फॉर एग्जांपल अनंत अंबानी, सन ऑफ मुकेश अंबानी, के व्हाट डू यू थिंक इज बेनिफिट ऑफ 1 करोड़? ही माइट से 1 आवर, कि मैं शायद एक गाड़ी खरीदने जाऊंगा तो शायद 1 करोड़ कम पड़ेगा, आई विल नीड एटलीस्ट 10 करोड़ एंड इन 1 hour आई विल बाय दैट कार एंड दैट 10 करोड़ इज गॉन। Hope that is clear. So from person to person, benefit of that 1 crore is going to differ, and that's why benefit cannot be the criteria deciding revenue and capital. Receipts, expense mein that criteria is benefit, which defines revenue, capital and deferred revenue. But in receipts it cannot be, I repeat, it cannot be benefit. तो फिर रिसीट को डिफाइन कैसे करेंगे? हाउ विल वी सेग्रीगेट रेवेन्यू रिसीट फ्रॉम कैपिटल रिसीट? आंसर टू दैट क्वेश्चन इज, इट इज द फ्रीक्वेंसी of the event which results into this receipt that will define whether it is capital or revenue. I repeat, it is the frequency of that event which results into this receipt that will define whether it is revenue or whether it is capital. नहीं समझ में आया? समझाता हूं। पहले रेवेन्यू देखते हैं on the board everyone. If somebody is asking you what is revenue receipt, तो answer is, black से लिखता हूं, it is बिजनेस रिलेटेड। ये तो सब में आएगा। सी whether it is revenue expense, deferred revenue, capital, revenue receipt, capital receipt, it has to be business related, तभी यहां पर आएगा। अगर it is not business related तो यहां पर आएगा ही नहीं। यहां पर यानी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं आएगा, बिकॉज वी आर राइटिंग इन बुक्स ऑफ बिजनेस। अगर वो बिजनेस को अफेक्ट नहीं करता तो बिजनेस की बुक में नहीं आएगा, और अगर बिजनेस की बुक में नहीं आएगा तो हम लोग लिखेंगे भी नहीं उसको। होप थिंग्स आर क्लियर। सो नंबर 1, इट इज बिजनेस रिलेटेड। नंबर 2, इट इज जनरेटेड फ्रॉम डे टू डे business related routine activity, and because it is generated from day to day business related routine activity, remember it is recurring in nature. It is recurring in nature, यानी it is going to happen again and again. And recurring बोले तो कितना recurring? तो this is key. Recurring बोले तो it will at least take place once in every financial year. कम से कम एक बार, आई रिपीट, कम से कम एक बार तो ये पक्का हर फाइनेंशियल ईयर में होगा। होप दैट इज क्लियर। इट कैन बी कम से कम एक बार एवरी आवर, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी 6 months, एवरी ईयर। मतलब उससे भी और नहीं, यानी अगर कोई ऐसी एक्टिविटी है जिसमें से ये रिसीट जनरेट होती है, होप दैट इज क्लियर, दैट इज इनफ्लो ऑफ रिसोर्सेस। और अगर वो इवेंट जिससे ये रिसीट जनरेट होती है उसको 1 साल से ज्यादा का टाइम लग जाता है, तो इन दैट केस दैट इज नॉट अ रेवेन्यू रिसीट। बिफोर आई गो फॉर रेवेन्यू रिसीट फर्दर, एक बार पहले इट जस्ट वेंट आउट ऑफ माय माइंड, लेट मी डिफाइन व्हाट इज अ रिसीट। ठीक है, तो रिसीट, आई पुट इट ओवर हियर, यहां पर जगह है,
If you can remember, expense, it's amount spent for acquiring goods, acquiring service and acquiring asset. If you can remember, for the purpose of business are termed as business expense. Receipt exactly उसका उल्टा. It is amount received by exchanging goods, exchanging service, or exchanging of asset, or borrowing of money. It is an amount received by exchanging of goods, exchanging of service, or exchanging of asset, or borrowing of money by business as a part of business activity. Now that's your receipt, if you can understand. It's an amount received, so there is inflow, if you can understand. By exchange of goods, आप goods दोगे, सामने आपको कोई पैसा देगा. Money comes in, तो event क्या हुआ? Goods देना. आप सर्विस दोगे, सामने आपको पैसा मिला, वो इवेंट क्या होगा? सर्विस देना. और एक्सचेंजिंग ऑफ असेट, आपके पास जो असेट था, एवरी असेट हैज रियलाइजेबल वैल्यू, इट कैन बी एक्सचेंज, और सामने आपको पैसा मिलेगा. द इवेंट इज एक्सचेंज ऑफ असेट. और सिंपली बोरोइंग ऑफ मनी, आपको पैसे की जरूरत पड़ी और आप पैसा बोरो करते हो, किसके पास से करोगे? या तो सेकेंड पार्टी या थर्ड पार्टी. या तो सेकंड पार्टी से दिया तो बुक में कैसे रिकॉर्ड करोगे? एज कैपिटल रिप्रेजेंटिंग ओनर, इफ यू कैन रिमेंबर. और अगर थर्ड पार्टी से लिया तो कैसे लिखोगे? एज एक्सटर्नल लायबिलिटी. होप दैट इज क्लियर. सो और बोरिंग ऑफ मनी बाय बिजनेस एज अ पार्ट ऑफ बिजनेस activity, that is nothing but your receipt. Now this receipt can be revenue receipt, capital receipt, if the activity, which activity I am talking about? Exchanging of goods, exchanging of service, its frequency is business related, it is generated from day to day business related routine activity. Is exchange of good day to day? Yes, that's what my business is. Is exchange of service day to day? Yes, that's what my business is. Is exchange of asset my day to day activity? No. No. What are my assets, if you can understand? Soham Classes Private Limited. The building, the benches, the board, the AC, the car. These are my assets. Do you think I sell them on a day to day basis? No. When will I sell it? Only in two instances. Number one, when I close down, which I am not going to. And number two, when I expand and I am replacing this asset with a bigger asset, which right now I am not going to. Hope that is, and which none of the business is going to do on a day-to-day basis. So this is not a day-to-day activity. Borrowing money. Do you think I borrow money on a day-to-day basis? Do you think I borrow money at least once in a year? Do you think I sell asset at least once in a year? No. When did I borrow last? The answer is 5 years back when I bought my last property. When will I borrow next? Maybe 2-3 years down the line when I might take another property for growth aspect at some another area. So if you can understand, this is business related, this is business related, but these are not my day-to-day activity. This is not something which will be recurring in nature. That is, this is not something which happens at least once in the financial year. But when I talk about exchange of goods, when I talk about exchange of service, it is going to happen at least once in every financial year, because that's my business. Hope that is clear. So it is business related. It is generated from for day to day. It is generated from आएगा day to day business related routine activities. Which activity, if you can understand? तो
होप यू कैन अंडरस्टैंड, इट इज एक्सचेंज ऑफ गुड्स, एक्सचेंज ऑफ सर्विस, जो मैं नीचे लिख दूंगा. रिकरिंग इन नेचर, this will recur at least once in every financial year. Then what do you do at the end of the financial year? Expense में if you can remember, because it was based on benefit, तो जिसका बेनिफिट खत्म हो गया उसे क्लोज करते थे, चाहे वो कैपिटल हो, चाहे वो डिफर्ड रेवेन्यू, चाहे रेवेन्यू हो, सबको क्लोज करेंगे. कहां? पीएनएल में. जिसका बेनिफिट बाकी है उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे, चाहे रेवेन्यू हो, चाहे डिफर्ड रेवेन्यू हो, चाहे कैपिटल हो. कहां कैरी फॉरवर्ड करेंगे? फ्रॉम वन ईयर टू अनदर ईयर थ्रू व्हाट? बैलेंस शीट. एज व्हाट? करंट एसेट, फिक्टिशियस एसेट, नॉन करंट एसेट. But over here it is not about benefit. So how will I close or how will I carry forward revenue receipts? तो यहां पर it's about frequency. वो जो एक्टिविटी है जिसके वजह से ये रिसीट जनरेट हुई है, उस एक्टिविटी का पीरियड देखेंगे. बिकॉज हमारा अकाउंटिंग जो होता है वो पीरियड वाइज होता है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च. तो इस पीरियड का एक्टिविटी इस पीरियड के खत्म होने पर क्लोज कर देंगे. फिर अगले पीरियड का एक्टिविटी अगले पीरियड में क्लोज करेंगे, उसके अगले पीरियड का एक्टिविटी उसके अगले पीरियड में क्लोज करेंगे. सो एट द एंड ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर द receipts generated in that financial year are closed to profit and loss account, and the receipts generated from activity of next financial year are carried forward to next financial year through no option balance sheet as current liability. Hope things are clear. I repeat, at the end of every financial year, the receipt generated in that financial year are closed. Receipts generated in that financial year, ब्रैकेट में लिख देता हूं, from activities also of that financial year. So at the end of every financial year, the receipt generated in that financial year and from activities also of that financial year are closed. इसको हम यहां ले लेंगे. Are closed to profit and loss account, and the receipt generated from, generate हो गई है, पैसा आ गया है, from activity of next financial, मगर activity कब होने वाली है? Next financial year में. are carried forward to next financial year through what? balance sheet as what? current liability. अब लोग ये सब नहीं समझ में आया, चलो समझाता हूं, सुनना अच्छी तरह से. I give you service, सामने मैं क्या लेता हूं? फीस, right? Right now your 11th standard is going on. Your academic year or financial year that we are following is 1st April 20 to 31st March 21. अब इस दौरान आप 11th standard में हो, right? तो 11th standard की जितनी भी फीस है, I am going to give you service, that is activity of 2021, और उसकी जितनी भी फीस है which I am collecting, that will result into my revenue receipt. Understand this? Fees, exchange of service,
It's my business related. It is generated from day to day business related routine activity. It is recurring in nature. अगले साल 12th में होगे, उसके बाद first year, second year, third year. It's my day to day activity. It is recurring in nature. At least once in a year I am going to generate it. Hope you are getting it. So fees collected by me from you is my revenue receipt. 11th standard की fees at the end of 31st March 21 is falling in this category. At the end of every financial year. कौन सा फाइनेंशियल ईयर? 2021. हम अभी उसकी बात कर रहे हैं. The receipt generated in that financial year, आपकी फीस from activity also of that financial year. Which activity? 11th standard की सर्विस is to be closed to profit and loss account. And the receipt generated from activity of next financial year. We don't do it, but many of your friends who are in science, तो आपने सुना होगा यार, मे बी 8th 9th 10th में अगर आप यू हैव स्टडीड विद दोस ब्रांड्स, सो कॉल्ड ब्रांड्स, जो ब्रांड्स होने के बावजूद A1 नहीं ला सकते, मैं उनकी बात करता हूं. चलो नाम नहीं लेते, साइंस वालों की बात कर रहा हूं, तो उनकी मैं बात करता हूं. तो वहां पर आपने सुना होगा 8th स्टैंडर्ड में दे कलेक्ट फीस फॉर 9th एंड 10th ऑल्सो. 11th में दे कलेक्ट फीस फॉर 12th ऑल्सो. सो इफ यू कैन अंडरस्टैंड, 11th की बात करते हैं तो मेनी ऑफ योर फ्रेंड्स माइट हैव पेड 11th 12th का फीस साथ में, तो उन्होंने पे किया, यानी वो ब्रांड्स जो है उन्होंने कलेक्ट कर दिया. कलेक्ट किया तो 11th का फीस पहली कैटेगरी में. एट द एंड ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर द रिसीट जनरेटेड इन दैट ईयर 11th स्टैंडर्ड में, एंड फ्रॉम एक्टिविटी आल्सो ऑफ दैट फाइनेंशियल ईयर 11th का सर्विस इज क्लोज टू P&L. बट 11th में जो 12th का फीस वो ब्रांडेड लोगों ने कलेक्ट किया है, दैट फॉल्स इन दिस कैटेगरी. एंड द रिसीट जनरेटेड फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ नेक्स्ट ईयर. 12th कब आएगा? नेक्स्ट ईयर. मगर जनरेट अभी हो गया है, जनरेट हो गया है ना, पैसा ले लिया है, आर कैरिड फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर. क्यों नेक्स्ट ईयर? बिकॉज रिसीट में क्या है, इस साल का रिसीट इस साल क्लोज होगा, अगले साल का रिसीट क्लोज कब होगा? अगले साल. मगर हमने कलेक्ट तो अभी कर लिया है ना, तो इस साल से अगले साल क्लोज करने के लिए अगले साल ले जाएंगे. अब अगले साल ले जाने के लिए हमारे पास क्या है? बैलेंस शीट. और बैलेंस शीट में इफ यू कैन नाउ अंडरस्टैंड क्या होता है, तो जो बाकी होता है, अगर बेनिफिट लेना बाकी है तो असेट. यहां पर उन इंस्टीट्यूट के एंगल से देखो तो उन्होंने पैसा ले लिया है, क्या बाकी है? सर्विस देना बाकी है. और कितने टाइम में सर्विस देना है? तो विद इन 1 फाइनेंशियल ईयर. दैट्स वेयर दिस 12th स्टैंडर्ड का फीस in 11th standard will be shown as current liability of the business. Hope you are getting it. Hope you are getting it. I'll repeat. 11th standard में आपने मुझे 11th standard का फीस दिया. Revenue receipt का फंडा क्या है? It's not based on benefit, it is based on frequency that we decide whether it is revenue or capital. रेवेन्यू रिसीट कौन सी? इट इज बिजनेस रिलेटेड. इट इज जनरेटेड फ्रॉम डे टू डे बिजनेस रिलेटेड रूटीन एक्टिविटी. इट इज जनरेटेड. 4 सोर्सेज होते हैं रिसीट जनरेट करने के: एक्सचेंज ऑफ गुड्स, एक्सचेंज ऑफ सर्विस, एक्सचेंज ऑफ असेट, बोरोइंग ऑफ मनी. डू यू बोरो मनी एटलीस्ट वंस इन अ ईयर, एवरी ईयर? नो. डू यू सेल योर असेट, एक्सचेंज योर असेट एटलीस्ट वंस इन एवरी फाइनेंशियल ईयर? नो. Do you give service at least once in financial year? Yes. Do you exchange goods at least once in your financial year? Yes. So if you can understand, it is this and this will be falling under recurring activities or recurring receipts or revenue receipts. बाकी की दो यहाँ पर आएगी, जिस पर हम आज बात नहीं करेंगे, कल बात करेंगे. बात यहीं से शुरू होगी मगर इस साइड होगी. Hope you are convinced here. हर एक क्राइटेरिया डालना. हाँ, अब इनका एंड में अकाउंटिंग कैसे होगा? तो एट द एंड ऑफ एवरी, अब बेनिफिट तो है नहीं कि खत्म हो जाएगा क्लोज कर देंगे, यहां बेनिफिट नहीं होता है. यहां पर क्योंकि हर साल रिकर होने वाला है, तो इस साल, आई रिपीट, क्योंकि हर साल ही रिकर होने वाला है, तो रिसीट का फंडा होता है कि इस साल का रिसीट का हिसाब इस साल कर लो, कि इस साल के रिसीट से मुझे कितना फायदा हुआ, हिसाब करना है, यानी देखना फायदा हुआ या नुकसान हुआ. फायदा नुकसान के लिए कहां डालेंगे? तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालेंगे. तो इस साल का रिसीट एट द एंड ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर द रिसीट जनरेटेड यानी मनी कम्स इन दैट फाइनेंशियल ईयर, एंड होप यू कैन अंडरस्टैंड
एंड फ्रॉम एक्टिविटी ऑल्सो ऑफ दैट फाइनेंशियल ईयर। आपका 11th का फीस मैंने रिसीव किया फ्रॉम द सर्विस ऑफ योर 11th स्टैंडर्ड, सो रिसीट भी जनरेट भी मैंने इस साल किया और सर्विस भी इसी साल का था, उसे क्लोज कर देंगे, हिसाब कर देंगे, आर क्लोज्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मगर बाय चांस अगर रिसीट इज जनरेटेड फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ नेक्स्ट ईयर इन करंट ईयर, देन आर कैरिड फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट ईयर का रिसीट है ना, तो वो उसका हिसाब भी कब करेंगे? नेक्स्ट ईयर। होप दैट इज क्लियर। क्योंकि हिसाब नेक्स्ट ईयर करना है, कलेक्ट इस साल हो गया है, जनरेट इस साल हो गया है, तो इस साल से अगले साल कैरी फॉरवर्ड करेंगे। कैरी फॉरवर्ड कैसे करेंगे? थ्रू बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में क्या दिखता है? जो बाकी है, बेनिफिट लेना या बेनिफिट देना। एक्सपेंस में बेनिफिट लेना बाकी होता है, यहां पर बेनिफिट देना बाकी है। क्या बेनिफिट देना है? आपसे फीस कलेक्ट करनी है मगर आपको अभी भी पढ़ाना यानी सर्विस देना बाकी है, तो आप बन जाओगे उस इंस्टीट्यूट का लायबिलिटी। और कितने टाइम में सर्विस देंगे? विद इन 1 फाइनेंशियल ईयर, तो आप बन जाओगे उस इंस्टीट्यूट के करंट लायबिलिटी। होप थिंग्स आर क्लियर टू एवरीवन। याद रखना, यहां बेनिफिट की बात कभी मत करना, यहां फ्रीक्वेंसी की बात मत करना। यहां पर फ्रीक्वेंसी डिसाइड्स रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट, जो एटलीस्ट साल में एक बार होती है वो रेवेन्यू रिसीट। और जिसको होने में, जो एक्टिविटी को होने में मे बी साल से ज्यादा लग जाता है, उसे कहते हैं कैपिटल रिसीट। होप थिंग्स आर क्लियर। टुमारो सेशन आज इससे ज्यादा नहीं करते, आप होपफुली यहां तक क्लियर हो। एग्जांपल्स ऑफ रेवेन्यू रिसीट सोचिए, ठीक है? आई वांट यू टू थिंक, आई वांट यू टू गिव सम एग्जांपल्स, थिंक, ठीक है? गिव एग्जांपल्स, गो रॉन्ग, नो प्रॉब्लम। यहां पर मैंने आइडिया आपको ऑलरेडी दे दिया है, कल इसका केस स्टडी देखेंगे, ठीक है? वो प्लेस के साथ देखेंगे और समझेंगे कि एक्चुअल रेवेन्यू रिसीट क्या होता है, ठीक है? सो हियर आई एंड द सेशन, होपफुली दिस डिमार्केशन इज क्लियर टू एवरीवन। कल के सेशन में यहीं से कंटिन्यू करेंगे, एग्जाम्पल समझेंगे, छोटा सेशन होगा hopefully, and then we'll go to capital receipt, and then this entire topic, long topic, will get done. ठीक है? Getting the idea, making sense. So hashtag घर बैठे पढ़ो, stay home, stay safe. As I always say, take utmost care of your mental and physical health. Bye bye. See you all tomorrow. Take care.